minus 1, 0, 2. The matrix B will be B as a first row minus 1, 0, 2. 3, 4, 1 is the second row. As per the matrices, matrix C will be matrix C will be matrix C is the when we consider all the three matrices, we have the matrix A, matrix B, and matrix C. And in all the three matrices, observe that these are the three matrices A, B, and C. This is the last and the third matrix. What is it? It is a different matrix. Again, first matrix is 2 by 2, second matrix is 2 by 3, third matrix is again 2 by 3. Minus 1, 2, and 1. Minus 1, 2, and 1. Consider it as a standard formula. Minus 1, 2, 3, 2, 1, 0. Then we will find some values A plus B and B plus C. A plus B and B plus C. A plus B is possible or not? To find A plus B, is it whether A plus B is possible or not? It is asked to find what? A plus B, B plus C. But whether A plus B is possible, here what is the order of A? Order of A is of order what? Not possible. Why not possible? Why? Because their orders are not same. So A plus B is not possible. You must know the proper reason behind this, that A plus B is not possible. Why A plus B is not possible? Because the order of A is 2 by 2 and order of B is 2 by 3. For the confirmation of matrices, addition of matrices, the order must be same. But here the order is not same. As the order is not same, the addition of the two matrices is not confirmable. For confirmation of matrices, the order of the matrix must be same. Same number of rows and same number of columns must be in the matrices. Then and then the matrix addition is possible. Yes. Hence the matrix addition is not possible. It is a very simple reason. A is of order of A is order of A. Order of A is 2 by 2 and order of B, what is the order of B? 1 row, 2 row, but 1 column, 2 column, 2 by 3. So order is not same. Order is not same. So A plus B is does not exist. ये exist नहीं होगा. Does not exist. Whether B plus C will exist, write down the reason why order of A and B different होने की वजह से होता क्या है. Always write down the things needed for the next reference. When it will be necessary to write that this addition is not does not exist, you must know the reason behind this in wording. Matrix A is of 2 by 2. Matrix B is of 2 by 3. Order is not same. So A plus B does not exist. There is no existence of the matrix A plus B. Yes, the matrix A plus B will not exist. As far as the consideration of the addition of the matrices, you must know the proper reason.
Not necessary to solve the problem, but you must know the reason behind each of the problem. If and then you can solve the problem of theoretical problem. B plus C is possible. Why? Why B plus C is possible? Because of what? B plus C क्यों possible है? बताइए. Why B plus C is possible? B plus C is possible because of what? क्यों possible है? Both are of order 3 by 3. They are having the same order. Yes, you must know the reason behind this. Everything has a reason. Nothing is without reason. So you told me that these two are conformable for addition. It is called their conformation for addition. We we take the confirmation from the another person to do any work. Similarly, for confirmation of the addition of the two matrices, what is the condition? The two matrices must be of the same order. If the matrices are not of the same order, then we cannot say that the two matrices are added. So there is a problem of adding the matrices. Similarly, then what is value of B plus C? Find B plus C. करो solve B plus C. अगर आप कर सकते हो find B plus C. If it is possible for you, find B plus C. करो B plus C. मुझे अभी थोड़ा अलग क्वेश्चन लेना. क्या आएगा? व्हाट आर द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स बी प्लस सी? बी प्लस सी में कौन से एंट्रीज आएंगे? व्हाट आर द एंट्रीज इन द मैट्रिक्स बी प्लस सी? बहुत सिंपल. फॉर यू ओनली बी प्लस सी आई एम राइटिंग. दैट इज बी प्लस सी मैट्रिक्स. बी प्लस सी इज अ वेरी सिंपल मैट्रिक्स. व्हाट इज इट? देखिए, जब आप बी प्लस सी लेने वाले हो, वेयर इज द मैट्रिक्स बी? बी इज हैविंग 1 minus 1 0 2 3 4 1 and C is having minus 1 2 3 2 1 0. Add this two. 1 दोनों minus 1 ऐड हो जाओगे. What is the first element of B plus C? Minus 2. Second element plus 2. Very good. 3 plus 2 5. Yes. 2 plus 3 5. 4 plus 1 5. And 1 plus 0 is 1. आपको करना था. ठीक है. Very good. अभी हम जाएंगे थोड़े अलग क्वेश्चन ऑन द सेम मैट्रिक्स. These three matrices are considered for our next discussion. देखो B plus C, ये जो है, ये सभी जो क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड विद एडिशन कंफर्मेबल है या नहीं. हम उसके लिए इतने टाइम देते हैं. होता क्या है, एडिशन कंफर्मेबल होता नहीं और स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस. कंफर्मेबल है. If the addition is confirmable, then it is very simple to add the matrices. हाँ, yes, yes, no doubt. अभी हमें क्या करना है? हमें करना क्या है? ये दो मैट्रिसेस ऐड हो गए ना, बी और सी. तो दिस इज मैट्रिक्स सी. बट हम लोगों ने बी एंड सी ऐड किया. अब हमें दूसरा लेना है. हम क्या लेने वाले देखिए. वी आर गोइंग टू शो यू अनदर. अभी आपको हम एक अलग क्वेश्चन देते हैं. क्वेश्चन ऐसा है, what is value of 3b plus 2b plus 3a? Whether 2b plus 3a is calculated or not. 2b plus 3a. मेरा क्वेश्चन है whether you can find 2b plus 3a. नेक्स्ट क्वेश्चन 2b plus 3a. अब उसका रीजन आपको बताना है. whether it is possible to find 2b plus 3a. बताइए 2b plus 3a. क्या आप 2b plus 3a find not? रीजन दीजिए. what is order of matrix 2b? what is of order of the matrix 2b? मैट्रिक्स 2b के ऑर्डर कितने होगी? ऑर्डर इज सेम एज दैट ऑफ मैट्रिक्स ए. ये सेम रीजन. 2b का ऑर्डर होगा 2/2 और 3a का ऑर्डर होगा 2/3. द ऑर्डर इज नॉट सेम. द 2b plus 3a इज नॉट कंफर्मेबल फॉर एडिशन. आपको लिख कर लेना ये. नेक्स्ट 3c minus 4b. 3c minus 4b.
थ्राइस सी माइनस 4b। क्या ये एडिशन हो सकता है? थ्राइस यस, 2/3 3 थ्राइस सी माइनस 4b यस। तो करो थ्राइस सी माइनस 4b, multiply the matrix C by 3 and multiply the matrix B by minus 4 and add these two. Yeah, and multiply by 4 and subtract these two. Addition and subtraction are same. 3C minus 4B. पहला एलिमेंट बताइए, पहला सॉल्व करना है आपको। हमने देखा वेदर दिस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल और नॉट। यस, जब हम इस चीज को देखते हैं, व्हेन यू सी दिस, कल जब हमने लिया था तो कल का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था वेदर मैट्रिक्स एडिशन इज कंफर्मेबल। जब वो कंफर्मेबल था तो वी हैड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम फिर से कुछ मैट्रिसेस ले रहे हैं। अब ये सभी मैट्रिक्स में हमने देखा है कि जब हम मैट्रिक्स का एडिशन लेते हो तो हमें पहले ऑर्डर चेक करनी होती है, इसलिए मैंने इसलिए आपके लिए इतना टाइम दिया है। होता क्या है, हमें लगता है हमें ये प्रॉब्लम आएगा और वही हमारा जो है ना नुकसान पहुंच जाता है। वी थॉट दैट सो मेनी टाइम्स हमें ये आया था, हमको आता था। वी थिंक हमें किसी चीज की फिर से देखने की जरूरत नहीं होती है, एंड दिस इज द डेंजर थिंग। तो ये सर ये लोग होमवर्क सेंड नहीं कर रहे सर। नहीं जाने दो ना, उनको बाद में सेंड करने को बोलो, वो तो उनका नुकसान है ना। होमवर्क अभी आपके लिए सिंपल होमवर्क दिया था, ज्यादा होमवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे बात करे तो ऐसा नहीं ना, ज्यादा होमवर्क की जरूरत भी नहीं है। होमवर्क सर मुझे आया नहीं तो सर मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ सर, बट मुझे किसी ने सेंड किया ही नहीं है सर। ठीक है चलेगा। अभी इनको अभी लाइव लेक्चर में जो लोग हैं उनके लिए लाइव रहना चाहिए, वो कोई मतलब नहीं है रिकॉर्डिंग में। हजारों रिकॉर्डिंग है दुनिया में। यस यस यस, पहला एंट्री है 1, ये मुझे चाहिए था। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? यस, आई आस्क्ड यू अबाउट द फर्स्ट एंट्री। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? 3c माइनस 4b की पहली एंट्री। अभी लास्ट एंट्री बोलो, व्हाट इज द लास्ट 3c माइनस 4b की लास्ट एंट्री? व्हाट इज द लास्ट एंट्री ऑफ 3c माइनस 4b? यस, बहुत सही। डायरेक्ट एंट्री कैसे निकालनी ये मैं आपको बताऊंगा, फिर ये कंप्लीट सॉल्व करके देने वाला हूँ। डायरेक्ट एंट्री आपको अगर लास्ट एंट्री चाहिए तो ये लास्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3, यही ट्रिक है। और लास्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 0 0 माइनस करो कुछ नहीं, लास्ट एंट्री है 3। तो लास्ट एंट्री 3c, हाँ उल्टा हुआ, 4c 0 0 माइनस 4 3c माइनस 4b 0 माइनस 4, वेरी गुड, माइनस 4। अभी हमें कौन सी भी एंट्री अगर निकालनी है तो इसके लिए क्या करना है? बस 3c माइनस 4b कंप्लीट, 3c माइनस 4b, 3 इंटू मैट्रिक्स सी, मैं अभी इधर लिख नहीं रहा हूँ, आपके पास है, माइनस 4 इंटू मैट्रिक्स बी। तो मैं अभी लिख, समझो मेरे पास सामने मैट्रिक्स है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ इधर, फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सभी। 3c, 3 1 जार 3 माइनस 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, पहला एंड। सेकंड रो, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3 3, ये मैट्रिक्स सी के एलिमेंट्स है। माइनस 4 को हम माइनस यही रखते हैं, कन्वीनियंट होता है सब्ट्रैक्शन करना, 4 को अंदर लेके जाते हैं। बट जनरली होता है कि इधर प्लस रखने का, इधर माइनस 4 में मल्टीप्लाई करने का, ये भी एक बेटर वे। 4b माइनस 4, तो ये देखो 4 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 4 होगा, और माइनस 4 करेंगे तो प्लस 4 होगा। टेक केयर आप कौन सा का किस तरह से करते हो, पहले हमने अलग बताया था। 4 3 जार 12, 4 4 जार 64। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यस, 3c प्लस माइनस 4b, वेरी गुड वेरी गुड, उसी तरह से करना है। अभी हमने थोड़ा अलग किया, अगर चल लोग ऐसे भी करते, -3 माइनस माइनस 4, तो ये हुआ -3 प्लस 4, 6 माइनस 0, कोई मतलब नहीं, 9 माइनस 8, मैं सब्ट्रैक्शन दिखा रहा हूँ, 6 माइनस 12,
3 minus 16 and 0 minus 4 and you will get all the entries. तो आपको सभी एंट्रीज मिल गए. So what is the answer? Minus 3 plus 4 is 1, 6 minus 0 is 6, 9 minus 8 is 1 and the last entry is 6 minus 12 is minus 12 and 3 minus 16 is minus 13 and 0 minus 4 is minus 4. ओके, सिर्फ हमें इसलिए लिया था कि एडिशन वगैरह आपको आता है, इसकी कोई जरूरत नहीं. हमें प्रॉब्लम जो लेने हैं, वी आर गोइंग टू कंसीडर द डिफरेंट प्रॉब्लम. एंड व्हाट इज टुडेज प्रॉब्लम? फिर से क्लियर. अगर आपने लिखा है तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से. ऑलरेडी यू सॉल्व इट. आपने पहले से सॉल्व किया है. गुड. Which method explain करो. Yes, which method? चलो दूसरे प्रॉब्लम में ले लेंगे. 3C मतलब इस मैट्रिक्स को हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया था, वो लिखा पहले. माइनस 4B, तो माइनस रखा और 4 ने सभी मल्टीप्लाई किया. इसको 4 ने, इसे 4 ने, 4 4 4. फिर ये माइनस साइन है तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4. सिमिलरली फॉर अदर नंबर. पहला 6 माइनस 0 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. 9 माइनस 8, 6 minus 12, 3 minus 16, 0 minus 4. पहले रो का पहला एलिमेंट और दूसरे मैट्रिक्स का भी पहले रो का पहला एलिमेंट सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा. इसलिए हमें ये मिल गया. अभी हमारे लिए दूसरा मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स चेंज करेंगे, टाइप भी चेंज करेंगे. चेंज इन मैट्रिक्स एंड चेंज इन द टाइप ऑफ द मैट्रिक्स एज वेल एज चेंज इन द प्रॉब्लम में भी हम चेंज करेंगे. हमारे लिए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल 2 minus 5 9, डायगोनल 2 minus 5 9, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है. 2 minus 5 9 इज द डायगोनल मैट्रिक्स. हाँ, यस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर वन एंड द सेम. डायगोनल है 2 minus 5 9, बी है डायगोनल. जैसे हम ऐड करते हैं ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, वैसे सब्ट्रैक्शन भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट. वेरी गुड. डायगोनल इज 1 1 minus 1 1 minus 4 11. चेंज करेंगे नंबर. और तीसरा डायगोनल मैट्रिक्स है. डायगोनल, ये जो मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए बोलेंगे, ABC. बोथ प्रोसेस आर सेम. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम. ए प्लस बी में आप लोग क्या करते हो, ए के पहले एलिमेंट में बी का पहला एलिमेंट ऐड करते हो. ए के पहले रो का पहला एलिमेंट और बी के पहले रो का पहला एलिमेंट ऐड होता है. अगर सब्ट्रैक्ट करें तो वही प्रोसेस होती है सब्ट्रैक्शन में भी. तो ये कल ही हमने बताया था सब्ट्रैक्शन भी किया. तो ओके, हम क्या करते हैं, ये माइनस बी का मतलब ए प्लस माइनस बी, मतलब वही हुआ ना. प्रोसेस तो वही ना, एलिमेंट तो वही लाते हैं. ओके, चलो दोनों तरह से. ठीक है, आगे के प्रॉब्लम में फिर से समझ में आएगा. और तीसरे प्रॉब्लम, ये तो डायगोनल का प्रॉब्लम. So diagonal entries of the third minus 6 3 4. अब हमें कुछ मैट्रिसेस फाइंड करना है. पहला है ए माइनस 2b. अब हम आपको बता दें, कंप्लीट मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं. डायगोनल मैट्रिसेस अगर है, इफ यू हैव द डायगोनल मैट्रिसेस, नो नीड टू राइट ऑल द मैट्रिसेस. तो कैसे करोगे आप? ये होगा हमारा ए माइनस 2b. तो पहले हमारा होगा मैट्रिक्स ए. ओके, प्लस, अभी हम उस तरह से जाएंगे, प्लस माइनस 2b. ये बेटर है आपको जो पहले बताया वो. फिर ये जो हमने लिखा है ना a प्लस सिक्स, फिर ए एज इट इज, ए इज व्हाट, डायगोनल मैट्रिक्स. ए को भी हम ऐसा ही लिखेंगे, ए
प्लस, अब ये -2 जो है, -2 बी को मल्टीप्लाई होगा। पहले हम ए लिखेंगे, ए क्या है? ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। कल जो प्रेजेंट है उनको मालूम है, डायगोनल ऑफ 2 माइनस 5 9 प्लस -2 इंटू -2b मतलब -2 इंटू डायगोनल ऑफ 1 1 -4। अभी आगे देखो, पहला जो है डायगोनल 2 माइनस 5 9 प्लस ये -2 अंदर जाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती है। देखिए इधर मैं आपको बताता हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स में इधर नंबर होता है, इधर नंबर होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। जब आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर तो ये जीरो 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 हो जाते हैं और सिर्फ डायगोनल की वैल्यू बदलती है। वैसे ये डायगोनल को -2 ने मल्टीप्लाई करने के बाद ये हुआ डायगोनल ऑफ -2 प्लस 8, -2 प्लस 8। अब आपको क्या करना है, ऐड। जब डायगोनल मैट्रिक्स को ऐड करते हो तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, दूसरी भी मेथड है वो भी बताएंगे। तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज ऐड हो गए, बिकॉज नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं ना वो जीरो होते हैं। आपको पहले पढ़ना चाहिए था, हर हर दिन का जो होता है वो कंटेंट लिखते जाइए साइमल्टेनियसली। अभी आपको लिखना चाहिए। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, पहला एलिमेंट पहले में ऐड होगा, 2 -2 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। -5 -2 ऐड है तो -7, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 9 प्लस 8 17। so this is a A-2B matrix which is again a diagonal. Our yesterday's explanation was addition of diagonal matrices is again a diagonal matrix. सभी डायगोनल है तो बहुत सिंपल है, सिर्फ डायगोनल की एंट्रीज को लेके जाना है। You will to take the diagonal entries. आप बोलो। yes, yes, yes. 0 0 0 0 -0 7 0 0 0 17 बराबर है। अगर ये स्क्वायर बाय स्क्वायर में ये मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, ये डायगोनल बराबर है तो ये पहला मैट्रिक्स कैसे दिखेगा, मतलब ये जो डायगोनल एंट्रीज है वो कैसे दिखेगी। आई विल सी द डायगोनल एंट्रीज। बहुत ही सिंपल। ये जो जीरो है ये पहले रो का पहला एलिमेंट है, -7 जो है सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, 17 जो है थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड, ऐसा रहता है डायगोनल। ये A11, A22, A33 आगे जाएंगे A44। तो मैट्रिक्स विल बिकम A-2B। जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा मैट्रिक्स एट द एंड होगा। इट विल बी पहला एलिमेंट जीरो, बाकी के दो जीरो। पहला जीरो, दूसरा क्या है -7, बाकी के जीरो। पहले ही दो जीरो और लास्ट वाला ये 17। दिस इज योर A-2B डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ अभी हमें, अगर आप सभी डायगोनल मैट्रिसेस है तो इस तरह से कैलकुलेशन करो, कोई उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की पहले जरूरत नहीं है।
अब देखो ये 2 माइनस 5 9 हमारा मैट्रिक्स ये कन्वर्ट होगा तो क्या होगा 2 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 9 ये भी ऐसा कन्वर्ट होगा ये भी कन्वर्ट होगा फिर आप ऐड करोगे अरे इससे क्या होता है टाइम पास होता है डायरेक्ट डायगोनल एंट्रीज डायगोनल में ऐड होते ही अलवेज होते हैं तो आपको डायगोनल एंट्रीज डायगोनल में ऐड करना है नॉन डायगोनल तो सब जीरो है तो कोई मतलब नहीं उनको ऐड करने में है ना यस अब हमारे पास जो है वो है आगे का क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन है आगे का ये क्वेश्चन बहुत ही अलग है इसमें हमें क्या दिया है दो मैट्रिसेस दिए एक्स एंड वाई का कुछ वैल्यू दिया समझो मैट्रिक्स एक्स प्लस मैट्रिक्स वाई इज इक्वल दो मैट्रिसेस का एडिशन दिया मैट्रिक्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5209 ये दो मैट्रिसेस का एडिशन और दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन दिया व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन 360 माइनस 1 तो कैसे हम मैट्रिक्स एक्स एंड वाई फाइंड करेंगे फाइंड एक्स एंड वाई डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एडिशन अभी हम एडिशन सीख गए फिर से हमने लिया अब एक्स का और वाई को कैसे फाइंड करें तो कुछ आइडिया किसी के माइंड में एक्स प्लस वाई एक मैट्रिक्स है एक्स माइनस वाई भी एक मैट्रिक्स है तो आप मैट्रिक्स एक्स कैसे फाइंड करोगे एनी आइडिया अब लेफ्ट साइड को आपको वेरिएबल जैसे ट्रीट करना है बट वो मैट्रिसेस है वेरिएबल नहीं है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5209 and x minus y is 360 minus 1 सिंपल है आप देखो ना ये दोनों को देखने के बाद ये कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई को फाइंड सिंपल ट्रिक में हम बता रहे हैं आपको कुछ भी नहीं करना है आपको ऐसे एक्स प्लस वाई मैट्रिक्स लिखना है सामने फिर आप लिखेंगे एक्स माइनस वाई दूसरा मैट्रिक्स आप क्या करोगे डायरेक्ट ये दोनों को ऐड करो जब ये प्लस वाई माइनस वाई अभी इधर अलजेब्रा यूज करना है तो कैंसिल हो जाते हैं बट एक्स प्लस एक्स क्या होगा 2 टाइम्स एक्स मैट्रिक्स और राइट साइड में होगा ये पहला मैट्रिक्स प्लस ये दूसरा मैट्रिक्स पहला ये और दूसरा ये आ गई बात समझ में है ना अभी 2x विल बी द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस अभी ये दोनों ऐड करो 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 9 प्लस 9 माइनस 1 8 0 यस इलिमिनेशन यस बट मैट्रिक्स की इलिमिनेशन है मैट्रिक्स को इलिमिनेट करेंगे है ना वेरिएबल नहीं मैट्रिक्स इटसेल्फ कंसीडर एज अ वेरिएबल में यस तो ये 2x मिलेगा आपको मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ 2x आपका मिल गया है ये दोनों ऐड हो गए ना 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 और ये भी 8 तो आपका x क्या होगा व्हाट विल बी योर मैट्रिक्स x आपका मैट्रिक्स x क्या होगा व्हाट विल बी योर मैट्रिक्स x